ਬੱਚੇ as soon as they become 16 17 about to become 18 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ we are going to become 18 so 18 is like they feel ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜ ਅਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਫਰੀਡਮ ਹੈ they think ਕਿ like it's an eligible age to vote but they feel it's an eligible age that they can do anything now ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫॉर ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਵੀ ਫੀਲ ਕਿ ਨੋ ਫॉर them it's freedom but 18 ਦੇ ਨਾਲ now it's time they focus on many more things in their life can become challenging also for them ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ this is not just an age of freedom but instead now this is an age where now your entire life would depend on this age what choices you do now what ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂ ਟੇਕ ਨਾਓ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਕੋ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਿਕਮ ਫਰੀ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅਡਲਟਸ ਨਾਓ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਫਰੀਡਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕੇਮ ਇਨ ਦੇਅਰ ਮਾਈਂਡ ਆਰ ਦੇ ਇਨ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫਰੀਡਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਸਪਰੈਸਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਫੀਲ ਸਪਰੈਸਡ ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰੈਂਟ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ parents show their concern parents are protective parents ਦਾ ਜੋ protective mode ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ suppression ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ parents are suppressing us ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਥਿੰਕਰ ਵਾਲਾ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟ ਪਰ ਉਸ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਊ ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਵਿਦ ਦ ਚਾਈਲਡ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਚਾਣ ਕੇ ਅਬ ਸੋ ਜਾ ਬੈਠ ਜਾ ਅਬ ਖਾ ਲੈ ਅਬ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਅਬ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਰੀਡਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਨਾਓ ਹੁਣ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਦੋ ਐਂਗਲ ਬਣਨਗੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਰੀਡਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਈਵਲ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਏਜ 18 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਇਹ 18 ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਿਆ 16 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵੀਟ 16 तो हम जो मर्जी करें हैं जी होंगे ना तो 16 और 18 ते ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵੀ ਸੈਕਰੀਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਰਾਈਟ ਪਰ ਉਹ किस बारे फ्रीडम मांग रहा है कि मैं अपनी सेहत के बारे में जानता हूँ आप मेरे को कुछ मत कहो राइट हुन फर्ज करो वो लेट उठिया लेट उठन तो बाद वो कुछ खा ही नहीं रहा फोन ते ही लग्या होया लेट उठिया उन्हें योगा या सैर या एक्सरसाइज भी कुछ नहीं की राइट लेट उठिया ओदा जो ਰੈਗੂਲਰ ਦੁਨੀਆ ਲੰਚ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹਾ ਧੋ ਲੈ ਨਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅਤੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ 3-4 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਰਾਈਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਕੇ ਬਾਰੇ में जानता हूँ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਂਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇੰਨੀ
ज़्यादा एडवांस है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ what are the ways how to sleep, when to sleep, when to get up for my good health, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਐਂਗਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਲੋਜ਼ ਫੀਲ ਕਰੇ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਏਜ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਨੰਬਰ 1। ਰਾਈਟ ਨੰਬਰ 2, ਉਹਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਬਿਊਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਕੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਮੋਡਰੇਟ ਰਾਈਟ in their behavior, है ना। सो ਉਹਨਾਂ ਦਾ 18 ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ ਜਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੂੰ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਰੀडम ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਈਚ ਇੰਡੀਵਿजुअल ਬੱਚੇ ਦਾ और ईच इंडिविजुअल पेरेंट ਦਾ बनेगा ना। जैसे मेरे दोस्त रात को गाड़ी लेकर निकल जाते हैं बिना बताए मॉम डैड को अपने, मैं तब भी पूछता हूँ कि मैं चले जाऊँ 11 बजे के बाद, तब भी अलाउ नहीं करते कि नहीं जाना, घर पे रह वगैरह वगैरह। क्या करेगा इतनी लेट जाकर, कल मिल लियो। इस चीज़ की फ्रीडम नहीं देते। ਇਸ ਚੀਜ਼ की फ्रीडम नहीं देते हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਰੀडम ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੋਕਨ ਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ करना चाहते हैं, बस दे शुड लेट अस डू दैट। हमने पेरेंट्स ने मना कर दिया तो वो उनकी फ्रीडम खत्म। नहीं तो पहला क्वेश्चन शुरू होगा कि इसको फ्रीडम बोलते हैं कि रात को मैं 11 बजे जाना है, इसको फ्रीडम बोलते हैं। जितने बजे भी जाने जा सके। हाँ, अगर आप मान लिया पढ़ने जाना चाहते हो तो भी पेरेंट्स मना कर देते हैं। नहीं, इसका मतलब कम से कम पेरेंट्स को तो पता ही है कि ये बाहर जा क्यों रहे हैं। नाउ वो सो कार्ड फन क्या है बाहर जाने का, मैं मना नहीं कर रहा, और मेरे मना करने से कोई मान थोड़ा ना जाएगा। मेरा सवाल ये है कि जब उनके साथ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो बाहर जाते हैं, फिर वो मस्ती करते हैं, और मे बी वो मन मर्जी से जहाँ पर लड़कियों को छेड़ लेते हैं, और जहाँ पे जैसे मर्जी उल्टा सीधा मजाक कर लेते हैं, और वो जैसे मर्जी तेज़ गाड़ी चला लेते हैं, स्टंट कर लेते हैं, स्टंट्स कर देना ना हाँ जी कार ते, हाँ जी या और भी कई ऐसे ईवल्स हैं जो वो कर लेते हैं। और डे टाइम में बच्चे अपने पढ़ाई में बिज़ी हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में बिज़ी हैं, तो उनके हिसाब से ये फ़न है या ये उनको एट द एंड ऑफ द डे दे आर लूज़र। वो तो अपना टाइम जुडिशियसली स्पेंड कर ही नहीं रहे हैं। आप मेरे को मतलब ऐसे मेरे को समझाओ कि इसकी नेसेसिटी क्या है। स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, घर आते हैं, फिर ट्यूशन में पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है कि दोस्तों से मिले, मस्ती करें, अपना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि फिर कॉलेज में न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, सब अपना अपना चले गए, उसके बाद मिलना कम हो ही जाता है। तो इसलिए जाने का ही मन करता है कि हाँ आखिरी साल है 10th का, उसके बाद सबके अलग अलग सेक्शन हो जाने हैं, सब ने अपनी स्ट्रीम्स ले लेनी है, फिर फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो ये साल अपना मस्ती करें, थोड़ा पढ़े भी, पर रात को थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करें। मतलब मेन इंटरेस्ट है मस्ती करे। तो एक
मतलब ये जो रात को लेट नाइट जाने वाली जो मस्ती है, अल्टीमेटली इट लीड्स टू द रॉन्ग पाथ, राइट। अच्छा, मैं आपको न्यूयॉर्क का एक किस्सा बताता हूँ। एक बच्चा रात को 2:30-3 बजे कहीं डांस पार्टी पे था और पेरेंट्स को मालूम है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड है और पेरेंट्स ने उसको पूरी फ्रीडम दी हुई थी। रात को 2:30-3 बजे वो जब डांस फ्लोर पे था तो और भी लड़के थे, तो किसी लड़के से उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ लग गया या हिप टच हो गया, तो वहाँ पर इतनी लड़ाई हुई, वो बर्दाश्त नहीं कर सका, तो फ्लोर पे उसने वो दूसरे लड़के का मर्डर कर दिया। ये तो स्पर ऑफ द मोमेंट है ना। सभी के साथ ऐसे थोड़ा ना होगा कि हर किसी की गर्लफ्रेंड को कोई टच कर देगा या हर कोई मर्डर ही कर देगा। ये वाला जो हाइपोथेसिस मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ जी, वो मम्मी पापा समझा नहीं सकते हैं और हर बच्चा बोलेगा जरूरी है मेरे केस में ही ऐसे होगा, राइट। तुमने तो सिर्फ रोकना है मेरे को। पर क्या आपके पास या किसी भी बच्चे के पास ये फार साइटेडनेस है कि ऐसे वहां पर नहीं होगा? क्योंकि दैट इज द टाइम व्हेन वन इज गोइंग टू प्ले विद द इवल्स। अच्छा, लेकिन आपका जो वो मस्ती वाला सब्जेक्ट है, उस मस्ती वाले सब्जेक्ट में एंटर करने से पहले वैसे उसको हम एंजॉय करें या ना करें, लेकिन एक मेरा सवाल है, आपके पास कार है ना? कार कैसे चलती है? सड़क के ऊपर, राइट? अगर सड़क ना हो, कार कहाँ चलाओगे? ऐसे ही मैं एक स्पॉन्टेनियस सा क्वेश्चन बना रहा हूं। सड़क ना हो, कार कहाँ चलाओगे? ब्रिजेज ना हो तो ट्रैफिक जाम मिलेगा, कार कहाँ चलाओगे? आपकी कार में पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप ही इतनी दूर है कि वहां तक जा नहीं सकती, आपको कार को सारी रात धक्का लगाना पड़ रहा है, सर्दी के दिन है या गर्मी के दिन है, वेदर आपको बॉदर कर रहा है, कल आपका एग्जाम है, आपकी मस्ती उस सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गई, आप कार को पुश करके ले जा नहीं सकते, टेम्परेचर बॉदर कर रहा है, चाहे वो सर्दी वाला ठंड है, चाहे गर्मी वाला हीट है। सो ड्यूरिंग दैट weather bothering you and situation bothering you, there is no petrol in the car and car cannot go to the petrol pump, what you will do? Okay, at that time anything can happen. अच्छा ठीक है, फिर मैं ऐसे कर दूंगा, मेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं, मैं कार को वहीं पे पार्क करके मैं घर आ जाऊंगा। अच्छा, घर कैसे आओगे? आप तो थोड़ी दूर हो ना, कार घर के आसपास थोड़ा ना चलाते हैं, पार्क में तो नहीं ना चलाते हैं। अच्छा, अब फिर बैक टू 1 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। somebody मेड द कार, सबसे इनिशियली पहले क्या था? बुलक कार्ट है ना, या लोग पैदल चलते थे या साइकिल हो गई होगी, पर अब कार आ गई, किसी ने कार भी इन्वेंट की है एंड यू आर प्रिविलेज्ड। अच्छा, किसी इंजीनियर ने रोड भी बनाई है, यू आर प्रिविलेज्ड। इसका मतलब आज जो पापा मम्मी ने मेहनत करके या ग्रैंड पेरेंट्स की मनी के साथ आपको प्रोवाइड कराया ना, कार समेत फैसिलिटीज, इनके पीछे कितनी कितनी लोगों की लेबर है। रोड मिली है किसी इंजीनियर का जीनियस आइडिया है कि आप रोड पे कार चला सकते हो। कार चलाना मना बुरा नहीं है। तो आप इस सोसाइटी को, फ्यूचर वाली सोसाइटी को, आप अपनी तरफ से क्या योगदान दोगे? व्हाट यू विल कंट्रीब्यूट एज ए कंज्यूमर ऑफ दैट प्रिविलेज यू हैव एट दैट टाइम। तुम तो उसको कंज्यूम कर रहे हो ना। आप
अच्छा, मैं नहीं बोल रहा कि आप घर में बैठ के दादा दादी के पैर घुटो, मैं नहीं बोल रहा कि मम्मी पापा के पैर घुटो, मैं नहीं बोल रहा कि आप घर के बर्तन मांजो, मैं नहीं बोल रहा कि आप घर का कोई भी काम करो। आप मतलब नौजवानों को बोलते हैं कि दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली कंट्री, दे आर द फ्यूचर ऑफ द दिस प्लेनेट, इस यूनिवर्स के वो फ्यूचर हैं। कोई आपके जैसे ही आज से 50-70 साल पहले सोच रहा था तो उसने आपको ब्रिजेस बना दिए। वो सारी जितनी भी प्रिविलेजेस मिली हैं उनमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा ड्यूरिंग दैट मस्ती। मस्ती को नहीं मना किया जा, यस यू डू दैट मस्ती, पर कंपेयर करके देखो। अगर मैं आपको बोलूं कि आप हेल्दी फूड खाओ, वो सेहत के लिए अच्छा होता है, इन कंपैरिजन टू दैट आप घास खाओ, तो आप घास और हेल्दी फूड में से क्या खाओगे? हैं? हेल्दी फूड खाओगे ना। ऐसे ही अगर मैं 100 कार्ड मस्ती कर रहा हूं, मैं जस्ट फॉर द हैक ऑफ उस इक्वेशन को रखूं कि मेरी मस्ती विल गो ऑल इन वेन लाइक घास, पर अगर मैंने कुछ क्रिएटिव सोचना शुरू किया ना, तो मैं अपने दिमाग को, अपनी सोचनी को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने कैरेक्टर को हेल्दी फूड दे रहा हूं, दैट आई कैन थिंक अबाउट फ्यूचर, आई कैन थिंक अबाउट सोसाइटी, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। हाँ, मेरे ब्रदर का बेटा साहिब सिंह, ही डिड इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन दैट। सो मेरे को बोलता है पिंदर चाचा, व्हाई डोंट यू फ्लोट दिस आइडिया इन लिविंग ट्रेजर इन इंडिया, कि जो घर में बुज़ुर्ग हैं उनकी अगर डॉटर इन लॉ उनका ध्यान नहीं करती, तो ऐसे बुज़ुर्गों को अगर आपका यूथ एडॉप्ट कर ले कि हम तुम्हारा ध्यान रखा करेंगे, दैट मीन्स वो वहाँ बैठा सोच रहा है, कुछ कंट्रीब्यूशन डालने की सोच रहा है ना, चाहे वो इम्प्लीमेंट हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि आप हर टाइम चैरिटी करो, बट जस्ट थिंक अबाउट दैट। लेकिन जो बच्चे सिर्फ फन के लिए जाते हैं, वो मेजॉरिटी है ना, हो सकता है उनके पापा मम्मी मना करते हैं, वो मानते नहीं हैं। हम ये कोट करते हैं कि औरों के पापा मम्मी मना नहीं करते हैं, But at least he's obedient. He's not going. Then he's listening to his parents. no, that is his greatness. Yes. उसका वो वाला जो वाइज सोचने का ढंग का जो चिप है, दैट इज एक्टिव। अगर आप उसको पैसिफाई कर दो और उसको सुनो ही ना, एक्टिवेट ही ना होने दो, देन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू आर लूजर। ऐसे सिर्फ सोचो, मस्ती को नहीं मना कर रहा। हाँ, पापा मम्मी का वे मना करने का हो सकता है गलत हो सकता है वो ये इक्वेशन भी ना बता पाए कि ऐसे रेप हो जाता है, ऐसे मर्डर हो जाता है, ऐसे गलत जगह पे ड्रग लेने लगते हैं, ऐसे कई बारी पी के आप पी के नहीं जा रहे, है ना। मोस्ट ऑफ द यूथ दे से नहीं, मैं पीता हूँ पर मॉडरेट करके पीता हूँ, और मैं बेहोश भी नहीं होता, मैं अपनी सेंसेस में रहता हूँ, ओके। लेकिन जो दूसरा सामने से कार चला के आ रहा है या मोटरसाइकिल चला के आ रहा है, वो पता नहीं कितना ड्रंक है, उसने आपको आके मार दी, आप उसके बारे में क्या सोच सकते हो? कि पापा मम्मी गलत थे जो मना कर रहे थे, या दीज थिंग्स आर वनरेबल टू, है ना, क्या बोलेंगे हम, बाउंड टू हैपन दैट। यही तो होता है रात को। तो वो जो जिस न्यूयॉर्क वाले बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, मर्डर हुआ, उसके बाद वो जेल हो गई, उसको यंग था, सारी उम्र के लिए उसके ऊपर ठप्पा लग गया कि ये जेल गया था। अब कहीं भी वो जॉब के लिए जाता है ना, तो फॉर्म पे लिखा होता है
आप कभी जेल में गए थे एक दिन के लिए भी? उसका करियर खराब हो गया, पढ़ाई में बहुत जोरदार था वो। अब कई बच्चों को यही भुलेखा रहता है कि मैं तो पढ़ाई बड़ा अच्छा, देखो नंबर मेरे अच्छे हैं, अब फन करने जाने दो ना। फन का मतलब क्या है? तेरी फ्रीडम फॉर इवल्स या तेरी फ्रीडम फॉर सेवा, तेरी फ्रीडम फॉर फ्यूचर, तेरी फ्रीडम टू बी क्रिएटिव, तेरी फ्रीडम फॉर ह्यूमैनिटी। ओके जाओ। अच्छा, मेरे केसिस की वैसी वो तो बहुत साल पुरानी गल होगी ना, 40 साल पुरानी गल होगी। मैं और एक मेरा फ्रेंड सी अमरजीत, ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੀਸਗੰਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਥੇ ਪੋਚੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਨਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। दैट मीन्स कि आप अपने आप को मतलब मैनिफेस्ट करो। You had that credibility. That was your credibility. हाँ, वो जो हेल्दी फूड वाला स्वाद आएगा ना आपको थिंकिंग में, मेरी थिंकिंग हेल्दी है। अच्छा, कितना फन आता होगा कि घर में मैं मम्मी पापा से लड़ के आया हूँ और उसके बाद वहां पे मजा कितना आता होगा। आता है मजा? आता है मजा? बहुत मजा आता है। आज मैंने पापा मम्मी को चुप करा दिया, अब जब जाऊंगा ना आगे से बोला नहीं करेंगे। इसका मतलब आप अपना फ्यूचर ये भी नहीं सोच रहे होंगे, आप नहीं, आई मीन कोई भी, कि अगर मेरी मैरिज होएगी और फिर ऐसे होगा तो मैं अपने बच्चे के साथ डील कैसे करूंगा। तो पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बहुत ज़्यादा कि पेरेंट्स ने अपने आप को किहड़ी गेम में इन्वॉल्व किया होया, शो ऑफ द गेम में इन्वॉल्व किया होया, बच्चे को बीमारी लगेगी। पेरेंट्स दे लाइक टू गो टू द पार्टीज लेट नाइट्स, बच्चे को बीमारी लगेगी। पेरेंट्स शो ऑफ ब्रांड नेम दिया गेमां 'च फसे हुए ने, बच्चे को बीमारी लगेगी। पेरेंट्स ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਐਮਪੈਥੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, पेरेंट्स ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, और always I am distracted and I am always going towards negative side. That means कि मेरा अपना यहाँ पे माइंड पूरा काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, आपको कोई फ्रेंड मिले जिसने ब्लेड उठाया हुआ है और बार बार अपने यहाँ पर मार रहा है और उसके ब्लड निकल रहा है, आप उसको फॉलो करोगे? No. नहीं, आपका दिमाग काम कर रहा होगा, अबे ये थोड़ा हमने करना है। तो जरूरी ब्लड निकलने वाली बातें गलत होती हैं। अगर दिमाग विच चंगा ख्याल नहीं आ रहा, योर एनर्जी इज डिप्लीटिंग एज इफ ब्लीडिंग। ਅੱਜ ਕਿਉਂ 20-30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਸੈਕਸ ਔਰ ਇਹ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ? क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहे ने कि व्हाट इज़ आइडियल फॉर मी। बच्चा सोचे कि अपने बारे इंट्रोस्पैक्शन करे कि की मैं ईवल्स करन वास्ते फ्रीडम मांग रहा या मेरे को अपने बारे में पता है, मैं सियाना हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, है ना।